morning, class 6. Today we will start with chapter 8 of English literature, A Game of Chance. So students, before reading this chapter, today I want to tell you the summary of this lesson. So listen very carefully, children. There was an Eid fair in Rashid's village. The tradesman sold all kinds of goods in the fair. Rashid went to see the fair with his uncle and a servant. A few friends of uncle met there and took him with them. Rashid's uncle asked him to look around the fair with the servant till he came back. Uncle warned him not to buy anything in his absence. Rashid promised to follow his instructions. Rashid and the servant roamed in the fair and saw the lucky shop. The shopkeeper of the lucky shop wanted everybody to try their luck. The customers had to pay 50 paise and pick up 6 dices. He had to add the numbers of the dices and find the total to get marked article as a prize. Rashid saw an old man won a beautiful clock, but he did not want it. The shopkeeper bought the clock for 50 rupees. In the same way, a small boy got a comb, but sold it back in 20 paise. In other trials, he won a fountain pen, a wristwatch, and a table lamp and returned with a smile. Rashid also got encouraged and started playing the game. Paying 50 paise, he got 2 pencils. The shopkeeper bought them back in 25 paise. He tried second time and got bottle of ink and sold it back in 25 paise. In this way, he kept on trying his luck and got a trifle every time. At last, he lost his every penny. The people around him were laughing at his bad luck. They returned from there and waited for uncle. The uncle understood that Rashid was upset. Rashid told him about his bad luck. In the game, the uncle explained to Rashid that it is nothing as good luck or bad luck. The winners were friends of the shopkeeper. They were playing tricks to tempt him to trying his luck. Such shopkeepers play tricks on innocent people to take their money. Uncle advised Rashid to forget about all that and not to tell anybody about his bad luck and his foolishness. So students, this is the brief summary of our chapter, which is A Game of Chance. So students, now let's start reading this story. Firstly, we will cover the first paragraph. Let's start reading. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. तो क्या होता था, ईद के मौके पर हर साल हमारे गांव में एक फेयर का मतलब होता है बच्चों मेला, ठीक है। तो हमारे गांव में एक मेला लगा करता था जब भी ईद का त्यौहार आता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। जो ईद होती थी वो तो सिर्फ एक दिन के लिए मनाई जाती थी, लेकिन जो मेला होता था, फेयर का मतलब मेला है ना, तो जो मेला होता था वो जो है बहुत दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड came there with all kinds of goods to sell.
ट्रेड्समैन का मतलब होता है बच्चों जो व्यापारी होते हैं, जो सामान बेचते हैं, वो बहुत दूर दूर से आते थे अपना सामान अपने साथ में ले करके उस सामान को उस मेले में बेचने के लिए। ठीक है। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो, मतलब आप जो है वो कुछ भी उस मेले में जा कर के खरीद सकते हैं, एक छोटी सी पिन से लेकर के एक बड़ी भैंस तक। बफेलो मतलब भैंस तक। ठीक है। तो मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के कोई भी पर्सन उस मेले से छोटी छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ तक को जो है परचेज कर सकता था, खरीद सकता था। सो द नेक्स्ट जो है पैरा नंबर 2, नाउ वी विल रीड। अंकल टुक मी टू द फेयर, जो अंकल थे रशीद के, वो जो है उसको मेले में लेकर के जाते हैं। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस, और उनके अंकल और रशीद के साथ में उनका जो भैया होता था जो कि उनके घर पे काम करता था, वो भी उनके साथ में उस मेले में जाता है। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, और जो मेला होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। क्राउड का मतलब होता है बच्चों भीड़। ठीक है। तो उस मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोग मेले वगैरह में जाते हैं तो कितनी ज़्यादा क्राउड होती है, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो वहाँ जो लोग वो लोग गए थे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. तो जो अंकल थे वो हमको उस भीड़ से बचा करके किनारे से ले करके जा रहे थे, और तभी उनके जो कुछ पुराने दोस्त थे वो उनको मिलते हैं। They wanted him to spend some time with them, और जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो अंकल हैं वो कुछ समय अपने फ्रेंड्स के साथ में बिताएं। Now we will read the third para of this chapter. Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. तो जो अंकल होते हैं वो मुझसे ये कहते हैं कि क्या मैं भैया के साथ में इस मेले में रुक पाऊँगा जब तक कि वो वापस आते हैं अपने दोस्तों से मिल करके। तो जब तक वो वापस आएंगे क्या मैं भैया के साथ में ठीक से रह सकता हूँ। I was happy to do that. ये सुन करके जो रशीद होता है उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। अंकल वॉन्ड मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। तो जो अंकल होते हैं वो ये एडवाइस देते हैं रशीद को, ये वॉर्न करते हैं उसको, चेतावनी। वॉर्न का मतलब होता है बच्चों चेतावनी देना। ठीक है। तो ये चेतावनी देते हैं रशीद को कि जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते हैं तब तक वो उस फेयर में, उस मेले में से कुछ भी ना खरीदे और ना ही उस मेले से बहुत ज़्यादा दूर जाए। ठीक है। आई प्रॉमिस डैट आई वुड वेट फॉर हिम, और जो रशीद होता है वो ये जो है अंकल से अपने प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि वो उनके आने तक उनका वेट करेगा और दूर नहीं जाएगा और ना ही उस मेले से कोई सामान खरीदेगा। ओके बच्चों, नाउ वी विल रीड द फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस चैप्टर। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। तो जो भैया था जिसके साथ में रशीद गया था, तो भैया और रशीद एक शॉप से, एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते हैं। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई फेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। तो उस मेले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रशीद खरीदना चाहता था। हम लोग कहीं जाते हैं, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हम ये भी खरीद लें, हम वो भी खरीद लें। तो ऐसे ही जो रशीद था वो भी चाहता था कि वो जो है बहुत सारी चीज़ें वहाँ से खरीद ले, लेकिन उसको क्या करना था, उसको अंकल का वेट करना था जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते हैं। देन वी केम टू वॉट वी कॉल्ड द लकी शॉप, और फिर वो घूमते 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 एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, एक ऐसी शॉप पर पहुंचते हैं, एक ऐसी दुकान में पहुंचते हैं जिसका नाम था लकी शॉप। लकी शॉप का मतलब बेटा होता है कि जैसे हम जहाँ पर कुछ भी कॉइन्स वगैरह दे करके, या वो जो एक सर्किल या एक आता है ना कि हम उसको फेंकते हैं और फेंकने के बाद में जिस भी चीज़ के अंदर वो जाती है तो हम जो है वो चीज़ हमारी हो जाती है, उसी टाइप की मेले में एक शॉप थी जिसका नाम था लकी शॉप। ठीक है। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड।
उसका जो दुकानदार था, जो शॉपकीपर को हम दुकानदार कहते हैं, तो जो दुकानदार था वो बहुत ही ज़्यादा ना तो जवान था और ना ही बहुत ज़्यादा वो बुढ़ा था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन, वो एक मिडिल एज्ड मैन था, मतलब ना तो उसकी उम्र जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और ना ही उसकी एज जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, मिडिल एज का वो जो है पर्सन था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेज़ी, वो जो शॉपकीपर था वो ना तो देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और ना ही बहुत ज़्यादा लेज़ी था। लेज़ी का मतलब होता है बच्चों आलसी, ठीक है। तो ना तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और ना ही बहुत ज़्यादा लेज़ी था और ना ही वो बहुत ज़्यादा यंग था और ना तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, और वो चाहता था कि वहाँ जो मेले में जितने भी लोग आए हैं वो सब के सब अपनी किस्मत को आजमाएं, है ना। लक का मतलब होता है किस्मत, ठीक है। तो जितने भी लोग उस मेले में आए हुए हैं वो सब के सब अपनी किस्मत को आजमाएं। There were dices on the table with numbers from 1 to 10 facing down. तो जो वो शॉप थी वहाँ पर नीचे जो टेबल होती है वहाँ पर जो है कुछ डाइसेस का मतलब होता है जो जैसे गोटियाँ होती हैं ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइसेस। तो वहाँ पर कुछ डाइसेस पड़ी हुई थी जिस पर 1 से लेकर के 10 नंबर तक लिखा हुआ था। All you had to do was to pay 50 पैसे, pick up any 6 dices, add up the numbers on the dices and find the total. तो इसको करना क्या था लोगों को कि वहाँ पर 50 पैसे 50 पैसे देने थे और कोई भी अपनी पसंद की अपने लक के हिसाब से कोई भी 6 डाइसेस उठानी थी और उसमें जो भी नंबर दिया था उस नंबर को ऐड करना था। उसके बाद में जो टोटल नंबर आता, ठीक है, ऐड करने पे 6 डाइसेस के नंबर्स पे जो टोटल नंबर आएगा वो अपने पास में रखना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद डैट नंबर वॉज योर्स, और उस नंबर वो जो टोटल करके जो नंबर आता उसके बाद में जो आर्टिकल पे वो जो नंबर लिखा होता वो आर्टिकल आपका हो जाता। अब जैसे कि मान लीजिए कि जो है 6 डाइसेस टोटल करने पे 15 आया, अब कोई भी वहाँ पर सामान है, कोई भी आर्टिकल है, उस पर जो जिस पर भी 15 लिखा होगा वो आर्टिकल वो सामान आपका हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस मच स्टोरी, दिस मच ओनली आई विल टेल यू टुडे। द नेक्स्ट story we will continue tomorrow. So let's quickly revise what we studied today. बच्चों, इस स्टोरी में एक रशीद बच्चा है जो जिसके गांव में हमेशा हर ईद के त्यौहार पर मेला लगता है, ठीक है। तो वो मेला बहुत दिनों तक चलता है और जहाँ पर बहुत सारे व्यापारी आते हैं तरह तरह के अपने सामान को बेचने के लिए। अंकल उसको और उनके घर में जो एक लड़का काम करता था उसको लेकर के जाते हैं उस मेले में। कुछ टाइम के बाद में वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और रशीद को वो ये वार्न करके जाते हैं कि जब तक वो वापस नहीं आते हैं तब तक रशीद वहाँ से बहुत दूर तक नहीं जाए और ना ही कोई सामान मेले से ऐसे खरीदे, उस फेयर से कोई सामान नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो रशीद जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है और फिर भैया जो होता है और जो रशीद होता है वो एक शॉप से दूसरी शॉप पर जा कर के घूमने लगते हैं। उसके बाद में रशीद को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पसंद में आती हैं, वो ख़रीदना भी चाहता है, लेकिन उससे अंकल ने कहा था कि अब तक वो वापस नहीं आते अब तक वो कुछ ना खरीदे। इसलिए फिर वो घूमते घूमते एक लकी शॉप पर पहुँचते हैं। लकी शॉप में जो शॉपकीपर होता है उसने कहा होता है कि आपको 50 पैसे देने हैं और उसके बाद में आप अपनी पसंद की कोई भी 6 डाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 6 डाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके पे जो भी आपको नंबर आएगा उसको आपको टोटल करना है और जो आर्टिकल पे वही नंबर मार्क होगा वो आर्टिकल आपका हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी। द नेक्स्ट स्टोरी we will continue tomorrow. Please read it once again. Thank you, children.